برطانیہ کے شہر نیلسن کو منی پاکستان کہا جاتا ہے، جہاں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد آباد ہے۔ نیلسن پلازا پاکستان سے امپورٹ کی گئی اشیاء، ملبوسات، جویلری اور دیگر سامان کی خرید و فروخت کا بڑا مرکز ہے۔ کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر اور کمرشل سیکرٹری محمد اختر نے اس کاروباری مرکز کا دورہ کیا۔ مزید تفصیلات راجہ واجد کی اس رپورٹ میں۔ منی پاکستان کے نام سے مشہور برطانوی علاقہ نیلسن پاکستانی اشیاء کا سب سے بڑا مرکز۔ کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر اور کمرشل سیکرٹری محمد اختر نے نیلسن کی معروف کاروباری شخصیات شہزاد احمد اور واسق اسجد کی دعوت پر نیلسن سینٹر کا دورہ کیا، جو یوم پاکستان کی مناسبت سے سبز ہلالی پرچموں سے خوب سجا ہوا تھا۔ اس موقع پر کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر کو کاروباری مرکز کے مختلف شعبوں کا دورہ کرایا گیا۔ کہیں پاکستانی دیدہ زیب ملبوسات سج دھج کے ساتھ موجود تھے تو کہیں روایتی عروسی ملبوسات رونق بکھیر رہے تھے۔ خاص طور پر خواتین کے خوبصورت ملبوسات کی وسیع ورائٹی موجود تھی۔ کونسل جنرل اور دیگر مہمانوں کو کاروباری مراکز کے مختلف شعبوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ معروف کاروباری شخصیت شہزاد احمد، لیڈر آف دی کونسل برسٹن ندیم احمد، کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، واسق اسجد علی کا 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نارتھ برطانیہ میں نیلسن پلازا پاکستانی ملبوسات، جیولری اور دیگر ضروریات زندگی کی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بہترین جگہ ہے۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے ہم پاکستان میں کسی بڑی مارکیٹ میں کھڑے ہیں۔ نیلسن پلازا سے پاکستان سے امپورٹ کی گئی ہر چیز مل جاتی ہے۔ پاکستانی اونڈ پاکستانی برانڈز اور پاکستان کے جو مختلف قسم کے ملبوسات ہیں وہ یہاں پہ موجود ہیں، اور لوگوں کی خوشی میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کو ایک فیلنگ ایسی ہو رہی ہے جس طرح پاکستان میں اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں شاپنگ کر رہے ہوں۔ پاکستانی برانڈز سب ادھر ملتے ہیں، اور جتنے برانڈز ہیں ہم پاکستان سے ڈائریکٹلی امپورٹ کرتے ہیں اور یہاں پر بیچتے ہیں۔ اس سے ہماری اکانومی کو بھی بہت زیادہ فائدہ ہے، اور یو کے اکانومی میں جو ہماری کمیونٹی ہے ادھر کام کر رہی ہے وہ سب کے لیے بہت بہتر ہے۔ Fantastic opportunity here. We've had the Consulate General here visiting us and having a look around the business. And the main purpose of it is to encourage trade between the UK and Pakistan. کووڈ کے بعد پھر ری اوپن کیا ہے اور الحمدللہ بہت اچھا رسپانس آ رہا ہے۔ ٹوٹلی پاکستانی لوگوں کے لیے پاکستانی ہر طرح کی ورائٹی کا کپڑا، ہر طرح کی ورائٹی کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں۔ نارتھ ویسٹ برطانیہ کے شہر نیلسن میں کونسل جنرل مانچسٹر طارق وزیر، کمرشل سیکرٹری محمد اختر نے وزٹ کے دوران بزنس مین، مقامی کاروباری شخصیات اور دکانداروں کو پاکستان کی حکومت کی جانب سے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔ کوئنٹری کے المدینہ انسٹیٹیوٹ میں پولیس، سارجنٹ، لوکل کاؤنسلرز اور کمیونٹی کی نمایاں شخصیات کا اجلاس ہوا، جس کا مقصد نوجوان نسل کو ڈرگز کے استعمال اور چاقو زنی کے بڑھتے واقعات سے بچانے کے لیے اقدامات کرنا تھا۔ اجلاس میں رہائشی علاقوں میں صفائی ستھرائی کے انتظام کو بہتر بنانے کے لیے بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ تفصیلات خاور راجہ کی اس رپورٹ میں۔ برطانیہ کے دیگر شہروں کی طرح کونٹری میں بھی ڈرگز کے استعمال اور چاقو زنی کے واقعات سے جہاں اہل علاقہ اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، تو وہیں پر پولیس بھی ان مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے علامہ نبیل افضل قادری نے المدینہ انسٹیٹیوٹ کونٹری میں ایک میٹنگ کا انعقاد کیا، جس میں مقامی پولیس کے سارجنٹس، کاؤنسلرز اور کمیونٹی کی شخصیات نے شرکت کی۔ اس نشست میں پولیس کی جانب سے جرائم کی روک تھام کے لیے کیے گئے اقدامات سے کمیونٹی کو آگاہ کیا گیا۔ اس موقع پر شرکاء نے پولیس سارجنٹ کو اپنے تحفظات سے آگاہ کیا اور مختلف تجاویز بھی پیش کی۔ شرکاء نے فولز ہل میں صفائی کے انتظامات کو مزید بہتر بنانے سے متعلق کاؤنسلرز کے ساتھ کمیونٹی کی دیگر شخصیات نے تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ بعد میں 92 نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے پولیس سارجنٹ اور کاؤنسلرز کا کہنا تھا اجلاس انتہائی مفید رہا، جس میں شہریوں کے مسائل کو حل کرنے پر مثبت تبادلہ خیال کیا گیا۔ Al-Madina Central Mosque and Institute, we had our local sergeant Asa Morris, who is the lead and head police officer for Foleshill, who came and met our local congregation and public to discuss some of the work the police are doing to tackle antisocial behavior, crime, in particular drugs and knife crime. So in relation to fly tipping, we have actually done a lot of work. We have 3 times a week vans are coming around from the council who are actually going around picking up the fly tipping. And this is after we've asked them to actually deal with this problem. کمیونٹی کے سارے مسائل کو ڈسکس کی گئی، انہوں نے باقاعدہ ہمیں بتایا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہمارے آنسر کوسچن ہوئے، اور بہت سے ایشو جو لوکل فولزل کے ایشو تھے، برننگ ایشو تھے، ان پر بڑی ڈیٹیل ڈسکس ہوئی۔ The root to a lot of the knife crime issues that we're having, so we're trying to tackle them in a two-pronged attack. Obviously we want to try and take violent crimes off the streets, but we also want to tackle the drug issue as well. پولیس سارجنٹ، کاؤنسلرز اور کمیونٹی نے اس طرح کی میٹنگ کو وقت کی ضرورت قرار دیتے ہوئے جاری رکھنے کا اعادہ کیا تاکہ باہمی مشاورت اور معلومات کے ساتھ مسائل کو بہتر انداز میں حل کیا جا سکے۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔
पाकिस्तान में तहरीक-ए-दम-एतमाद की बात कर सुनाई देते ही सियासी हलचल मच गई है। एक तरफ अपोजिशन महंगाई मुकाओ मार्च के साथ सड़कों पर है तो दूसरी जानिब हुकूमत ने अवामी जलसों के साथ अवाम के साथ राबते बढ़ा दिए हैं। पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर तहरीक-ए-दम-एतमाद के शोर शराबे पर बर्मिंघम के शहरियों ने मिला जुला रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। नुमाइंदा 92 न्यूज़ खावर राजा से गुफ्तगू में उनका क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़े अरसे के बाद OIC की जितने भी वज़ीर ख़ारजा आए और उन्होंने पाकिस्तान में आकर OIC का इजलास किया और इस मौके पर अपोजिशन ने आकर और PDM ने आकर जो अपने इसको सबूताज करने की कोशिश की, ये काबिले सताइश नहीं है। अपोजिशन जो है, जो तरीक़ाकार उन्होंने इस वक्त इस्तेमाल किया हुआ है तरीके अदम इत्मीद लाने के लिए, मैं नहीं समझती कि ये एक मुनासिब वक्त था, क्योंकि इस वक्त जो है हमारा मुल्क जो है बहुत बुरे हालात की तरफ जा रहा है। हो सकता है कि अगर इस तहरीक को आगे लेके जाते हैं तो खाना जंगी भी छिड़ सकती है। पाकिस्तान का वक़ार दुनिया में इस वक्त बढ़ रहा है, तो मैं समझता हूँ जो अपोजिशन भी है उसको भी चाहिए कि पाकिस्तान में वो सपोर्ट करें और ये एक गैर जमहूरी अमल नहीं करना चाहिए। एक प्राइम मिनिस्टर जो वक्त हमेशा पाकिस्तान में और अपोजिशन कहती रही कि किसी भी प्राइम मिनिस्टर ने अपना टाइम पूरा नहीं किया। तहरीक अदम एतमाद पेश की गई है, इंशाल्लाह कामयाब होगी और पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत की बहाली का रास्ता हमवार होगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक सिलेक्टेड को बिठाकर मुल्क और कौम की तरक्की को रोक दिया गया है। तहरीक अदम एतमाद जो है ये एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक हिस्सा है, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है पाकिस्तान के अंदर वो किसी तहरीक का मुतम्मल नहीं हो सकता। और इसमें चूँकि गवर्नमेंट जो लीडर है इस वक्त, तो पब्लिक राय यही है कि वो एक राइट डायरेक्शन में जा रहा है। बरतानिया के बाद आयरलैंड से भी पाकिस्तान भर के मेडिकल के मुस्तहिक तलबा और तालिबात के लिए एक और काबिल फ़ख्र कोशिश सामने आ गई है। मेडिकल कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तलबा के लिए आयरलैंड से पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के प्लेटफॉर्म से इमदाद का ऐलान कर दिया गया है। इस कार खैर के हवाले से पाकिस्तानी नैयार डॉक्टर मोहम्मद तारिक ने नुमाइंदा 92 न्यूज़ फैसल मिर्जा से गुफ्तगू की है, आइए देखते हैं। इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर मोहम्मद तारिक के साथ, जो फैम्स आयरलैंड का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इन्होंने पाकिस्तान की जो बिज़नेस कम्युनिटी है यहाँ आयरलैंड में, उन्हें इंगेज किया है। इसी हवाले से इनसे पूछेंगे कि इसके क्या गराज़ मकासद हैं और नेक्स्ट इवेंट कहाँ होने जा रहा है। तारिक, वेलकम टू 92 न्यूज़, बताइएगा आज के इवेंट के बारे में। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत शुक्रिया। आज बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट हमारा यहाँ पे रहा है। हमने जितने यहाँ पे बिज़नेस कम्युनिटी है उनको यहाँ पे फैम्स के ऊपर प्रेजेंटेशन दी है, उनको हमने बताया है कि फैम्स कैसे ऑपरेट करती है, फैम कैसे यहाँ से फ़ंड लेके वहाँ पे डिज़र्विंग स्टूडेंट उन तक पहुँचाती है। और फैम्स की सबसे बड़ी ब्यूटी ये है कि इसके अपने कोई एक्सपेंस ज़ीरो हैं। इसमें जो 100 यूरो देता है वो 100 के 100 यूरो जाके उस मेडिकल स्टूडेंट तक जाते हैं, और जो पब्लिक सेक्टर में मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ तक जाते हैं। और ये बहुत अच्छा सक्सेसफुल रहा है। यहाँ पे ऑल बिजनेसमैन फ्रॉम यहाँ पे आयरलैंड से वो आए हुए थे और आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू देम। तारिक, आप समझते हैं कि जो नेक्स्ट इवेंट होने जा रहा है उसमें पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स की आप हेल्प आउट करना चाहते हैं, एक बड़ी तादाद में लोग आएंगे? बिल्कुल, हम ये उम्मीद करते हैं, और जिस तरह हमने सारा बताया है अपने कंसल्टेंट कोलीग, अपने बिजनेसमैन कोलीग, अपने और फ्रेंड्स एंड फैमिली उन तक हमने पहुंचाया है। इट्स गोइंग टू बी रियल मेगा इवेंट। वी आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 300 पीपल इन दैट इवेंट। और इसमें मैं एक और चीज़ यहाँ पे हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारा पहला वेन्यू जो था वो क्राउन प्लाजा होटल था, 25 जून 2022 इवनिंग के टाइम। अब ये है कि वो क्राउन प्लाजा जो यूक्रेन के रिफ्यूजी जो आ रहे हैं वो वहाँ पे दे विल स्टे। और अब हमने हमारा जो न्यू वेन्यू होगा वो कार्टन होटल टेरेस टाउन डबलिन 15 वो होगा, और सेम डेट सेम टाइम, और बट वेन्यू इज़ कार्टन होटल टेरेस टाउन डबलिन 15। थैंक यू तारिक जी। तारिक का कहना है कि यहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वो पाकिस्तान में जो गरीब तलबा हैं, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, उनकी हेल्प करने में सामने आए हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि इस साल जो मज़ीद जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें आयरलैंड से स्कॉलरशिप ऑफ़र की जाएगी। जी। लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब और सियालकोट वेटरन्स के दरमियान खेला गया T20 ब्लास्ट मेजबान टीम सियालकोट वेटरन्स क्लब ने 7 विकेट से जीत लिया। फराज स्टेडियम में खेले गए इस मैच में कारोबारी शख्सियात और समाजी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं वसीम काज़मी की रिपोर्ट।
पाकिस्तान के दौरे पर आई हुई लंदन मीडिया क्रिकेट क्लब और सियालकोट वेटरन्स के दरमियान खेले गए इस मैच में मीडिया क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की, जबकि मुकर्रर ओवर्स में 127 रन स्कोर किए। लंदन मीडिया की जानब से सलीम साबरी, गफरान अशरफ, साजिद खान, अतर अब्बासी, हामिद मशरकी, गुलाम अब्बास और नदीम मुगल ने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करते हुए नुमाया स्कोर बनाए। जवाब में सियालकोट वेटरन्स ने 13वें ओवर्स में 3 विकेटों के नुकसान पर 128 रन का टारगेट पूरा करके मैच जीत लिया। लंदन मीडिया क्रिकेट टीम की जानब से कप्तान गुलाम हुसैन अवान ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, जबकि मेजबान टीम की जानब से ऑलराउंडर शाहिद मान को 3 विकेटें और 50 स्कोर करने पर मैन ऑफ द मैच करार दिया गया। मैच के ऑर्गेनाइजर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नायब सदर मियां आसफ अली ने मैच के इख्तिताम पर दोनों टीमों के खिलाड़ियों में सोवेनियर्स और मेडल्स तकसीम किए और मियां आसफ अली ने मेहमान टीम का सियालकोट आमद पर शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था कि उन्हें बेहद खुशी है कि लंदन से सहाफियों की टीम ने पाकिस्तान के मारूफ तिजारती शहर सियालकोट का दौरा किया। इनसे बैटिंग कुछ अच्छी नहीं हो सकी, अगर ये 200 के करीब रन करते तो मैच अच्छा होना था। शामदेद कहते हैं लंदन की मीडिया टीम और जो सारे लोग जो दोस्त आए हैं, और ये माशाल्लाह एक हेल्दी एक्टिविटी हुई है जिससे एक इंसान दोस्त माहौल क्रिएट किया गया है। पाकिस्तान में खेलना हमेशा बड़े एजाज़ की बात होती है और हमारे मीडिया के जिस तरह इस्तकबाल किया गया, जिस तरह सियालकोट में हमारे हॉस्पिटैलिटी हमने देखी, वो हम बहुत इंजॉय किया है। क्रिकेट को बहुत इंजॉय किया है, वेदर बहुत अच्छा था। सियालकोट के लोगों ने जिस तरह मोहब्बत दी, जिस प्यार से जो है हमारी टीम को वेलकम किया, ये हमेशा हमें याद रहेगा। एक अच्छा मैच हुआ, तमाशाइयों ने भी देखा। इस दौरे का मकसद सबसे बड़ा जो हमारा मकसद था, हमने मोहब्बतें बांटनी है, नए नए लोगों के साथ तारुफ होना है, वहाँ से मीडिया यहाँ से मीडिया, तो ये एक बड़ा अच्छा दौरा है। रन तो इतने नहीं लंदन ने किए, लेकिन एंजॉय किया है क्रिकेट को। इस मौके पर टीम मैनेजर ताहिर चौधरी ने कहा कि दौरे का मकसद पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी सतह पर क्रिकेट की बहाली के लिए लंदन मीडिया टीम की कोशिशों को सराहना था। मुस्तकबिल में भी ऐसे दौरे जारी रहेंगे। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। लंदन के नवाही इलाके टोटिंग में यौम पाकिस्तान और पाकिस्तान सरजमीन पार्टी बरतानिया के 6 साल मुकम्मल होने पर यौम तासीस मनाया गया। साबिक MNA और मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी BSP पाकिस्तान फौजिया हमीद की खसूसी शिरकत की है। तकरीब में पार्टी रहनुमा नए अरकान भी शामिल हुए। शाही का मजीद अहवाल वसीम काज़मी की इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके टूटिंग के मकामी होटल में पाकिस्तान सरजमीन पार्टी बरतानिया के लंदन में सदर रहील मसरूर के ज़ेर-ए-एहतमाम पार्टी की मरकजी ज्वाइंट सेक्रेटरी साबिक मेंबर कौमी असम्बली फौजिया हमीद के बरतानिया दौरे पर इशाइये का एहतमाम किया गया। इशाइये में यौम पाकिस्तान और PSP का छठा यौम तासीस भी मनाया गया, जिसमें मकामी अरकान और पार्टी रहनुमाओं ने भरपूर शिरकत की और करारदाद पाकिस्तान के 82 साल मुकम्मल होने पर और 23 मार्च के दिन की पाकिस्तान सरजमीन पार्टी के ऐलान को 6 साल मुकम्मल होने पर मुबारकबाद पेश की। इशाइये में फौजिया हमीद का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान की काबीना में ज्यादातर वही लोग हैं जिन पर माजी में सवालिया निशान रहा। PTI के अपने लोग होते तो हालात मुख्तलिफ होते। सरजमीन पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह एक वाहिद पार्टी है जिसका कोई भी अभी रुकन जो है वो पार्लियामेंट में नहीं है, लेकिन दिन रात वो तरक्की कर रही है, उसके मेंबरान में इजाफा हो रहा है और लोग जो हैं मुस्तफा कमाल के कहे हुए बताए हुए नजरिए को एक्सेप्ट कर रहे हैं। इस तरह लोग पाकिस्तान में पाक सरजमीन पार्टी को पजीराई दे रहे हैं, उसी तरह लंदन में भी हमें लोग ज्वाइन कर रहे हैं। साबिक MNA और ज्वाइंट सेक्रेटरी PSP फौजिया हमीद ने शुरा से सियासी सवालात पर मुफस्सिल गुफ्तगू की और पार्टी की तरवीज और तंजीम को मजबूत बनाने पर जोर दिया। उनका कहना था कि मुस्तफा कमाल का वाज़ेह पैगाम है कि हम पाकिस्तान के लिए काम करने वाली पार्टी का साथ देंगे। ताहम तनकीद और तायद हमारा बुनियादी हक है, फिर इसका शिकार चाहे हुकूमत हो या अपोजिशन। हम अपनी राय का इजहार खुलकर करेंगे। हमारा एजेंडा एक ही है, पाकिस्तानियत का। हमने कभी भी किसी एक पार्टी का ना साथ दिया है, ना किसी एक तबके का साथ दिया है। हम पॉलिसी बेस्ड पर लोगों की सपोर्ट करते हैं और उनके अगेंस्ट जाते हैं। हम मुस्तफ़ा कमाल भाई को जो है मुबारकबाद पेश करते हैं और उनकी जो काविश कराची के लिए रही है उस पर हम उनका बहुत शुक्रगुजार है और इन द फ्यूचर हम इंशाल्लाह ये उम्मीद रखते हैं कि मुस्तफ़ा कमाल भाई कराची पे दोबारा आएंगे। मैं तासीस भी है आज हमारा पाकिस्तानी पार्टी का और 23 मार्च के हवाले से पाकिस्तान का भी बहुत बड़ा दिन है। हम इशाइये में पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया ने यौम पाकिस्तान और यौम तासीस की मुनासबत से केक भी काटा। तकरीब में मोहम्मद रजा, अमीर फैसल अवान, फैज अहमद और रहील मसरूर ने इस मौके पर पार्टी में नए शामिल होने वाले अरकान का शुक्रिया भी अदा किया। वसीम काज़मी, 92 न्यूज़, लंदन। मैनचेस्टर के मकामी हॉल में द जिन्ना स्टोरी के नाम से फ़िक्र अंगेज़ तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें क़याम पाकिस्तान के हवाले से और मौजूदा दौर में मुसलमानों को दरपेश मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। मीडिया का किरदार भी मौज़ूए बहस बना रहा। देखते हैं राजा वाजिद और वकार बाबर की ये रिपोर्ट। होर की मंगना में रब कोलों
ਨਿਤ ਖੈਰ ਮੰਗਾ ਤੇਰੇ ਦਮ ਦੀ ਬਾਜ ਸਜਣ ਲਜਪਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਹੋ ਬਾਜ ਸਜਣ ਲਜਪਾਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੈਂ ਚੋਜੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ मैनचेस्टर के मकामी हॉल में दी जिना स्टोरी के नाम से एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें क़याम पाकिस्तान के हवाले से और मौजूदा दौर में मुसलमानों को दरपेश मसाइल और मुसलमान नौजवान नस्ल के मीडिया में किरदार अदा करने के हवाले से बातचीत की गई। डॉक्टर सुंदर चौहान ने निजामत के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। इस मौका पर मुकर्रिरीन का कहना था, क़याम पाकिस्तान हमारे आबा व अजदाद की कुर्बानियों का समर है और किन मुश्किलात से दो चार होकर पाकिस्तान वजूद में आया, हमें इसकी दिलो जान से कदर करना होगी। मुकर्रिरीन ने पाकिस्तान को दरपेश मसाइल, इस्लामोफोबिया और दीगर मसाइल पर भी इजहार ख्याल किया। मुकर्रिरीन का कहना था कि इस्लाम दुनिया में तेजी से फैल रहा है, जिसकी वजह से मसाइल में इजाफा किया जा रहा है। इस्लामोफोबिया के हवाले से वजीर आज़म इमरान खान की कोशिशों को भी सराहा गया। तकरीब में मौजूद मीडिया कारकुनान ने अपने तजुर्बात भी शेयर किए। तकरीब के शुरका ने 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि यूके के अंदर मुसलमान कम्युनिटी ने जिंदगी के हर शोबे में भरपूर किरदार अदा किया। मुसलमानों को मीडिया इंडस्ट्री में मजीद किरदार अदा करने की जरूरत है। Tonight's lineup of entertainment and educational talks was a real hit with the audience of esteemed people in the local community. We really enjoyed. Samir's done a good job. Samir and I'd like to give them both the credit for everything. Everyone was great, I'm not going to lie, but it was Samir after all and Dr. Fareed that made it happen. And it's great to have people in the audience that are taking this matter seriously. I spent so many years trying to understand why we hadn't got that far. And then I understood that the work wasn't done, our voices weren't heard. I am so impressed with the guest speakers and what Origins is actually about. We have been waiting for this moment. It's absolutely groundbreaking, and the opportunities that it's going to create for young creatives when I'm talking about that is in particular is Muslim young creatives, is just going to be phenomenal. Well, today's event has been fantastic because it's very important for us to remember our history. If we want to move in the present and the past and the future, we must always remember our history. Inspired by the speakers, Joga and Dr. Maqsood and Samina, just being able to share their stories and also being able to indulge in the Qawwali, which is such a beautiful element of, the heart of Islam as well. The origins, it's all Jinnah Sahab gave us an identity by creating Pakistan, and I think the origin is about the younger generation here who, I think they're a bit lost and they need an identity. For us to be able to make a space and have that space within the media, we often say that we're underrepresented or things are kind of taken out of context or spoken about or wrongly spoken about. तकरीब के आखिर में सलीम साबरी और हमनवाओं ने सूफियाना आरिफाना कलाम पेश करके समा बांध दिया। शुरका ने फिक्र अंगेज नशिस्त को बेहद सराहा और ऐसी तकरीब को जारी रखने पर जोर दिया। नौजवान नस्ल की हौसला अफजाई के लिए इस तरह के इवेंट्स का इनेकाद खुशाइंद इकदाम है। कैमरा पर्सन अमारा के साथ वकार बाबर मुगल, 92 न्यूज़, मैनचेस्टर। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्फा एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ यूके के साथ। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफारत खाने में 23 मार्च यौम पाकिस्तान के हवाले से तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें अमरीका और मुख्तलिफ ममालिक के सफारती, सिविल और फौजी हुकाम के अलावा पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी, तलबा और सफारत खाने के हुकाम ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। यौम पाकिस्तान की तकरीब का आगाज तलावत कुरान पाक से हुआ। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने अपने खिताब में पाकिस्तान और दुनिया भर में बसे पाकिस्तानियों को यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। उन्होंने पाक अमरीका ताल्लुकात में पाकिस्तानी अमरीकन कम्युनिटी के किरदार की तारीफ करते हुए कहा कि कम्युनिटी पाक अमरीका ताल्लुकात में अहम पुल की हैसियत रखती है। इस मौके पर असिस्टेंट डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डीन थॉमस ने खिताब करते हुए यौम पाकिस्तान की मुबारकबाद दी। सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान ने सहाफियों से बातचीत करते हुए कहा कि ये दिन तजदीद अहद का दिन है, जो हमें हमारे बुजुर्गों की कुर्बानियों की याद दिलाता है। मुझे बड़ी खुशी है कि डिप्लोमेटिक कोर से, स्टेट डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट से और मीडिया से और हमारी कम्युनिटी से लोग जो है वो इसमें शिरकत कर रहे हैं। तो ये यकीनन मेरे लिए पर्सनल
पर्सनली भी एक खुशी की बात है। मैं समझता हूँ कि आज पाकिस्तान अमेरिका जो बामी ताल्लुकात हैं, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द डायलॉग प्रोसेसेस, वो यकीनन बेहतर जगह पे हैं। इशाइये के शुरका ने यौम पाकिस्तान के हवाले से पैगाम देते हुए पाकिस्तान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। आज एम्बेसी के अंदर 3 मार्च का जो प्रोग्राम है बहुत ही ज़बरदस्त, पूरी दुनिया की म्युनिसिपैलिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं और बहुत ही ज़बरदस्त प्रोग्राम किया है। पाकिस्तान जिंदाबाद। एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में 23 मार्च का हम लोग सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। एम्बेसडर साहब ने बहुत अच्छा पैगाम दिया और उम्मीद है कि हम इस तरह पाकिस्तान के इस खास दिन को सेलिब्रेट करते रहेंगे साथ में। मुझे आज बहुत खुशी है कि हम एम्बेसी ऑफ पाकिस्तान में आज 23 मार्च का प्रोग्राम बना रहे हैं और ख़ास करके हमारे पाकिस्तानी कम्युनिटी और जितने भी पाकिस्तान में डिप्लोमेट कोर हैं सब यहाँ पर मौजूद हैं और ये पूरे पाकिस्तान की कौम को, सब बहन भाइयों को आज का दिन बहुत बहुत मुबारक। हम सबको 23 मार्च की विशिंग करते हैं सारी कौम को और हम बड़े थैंकफुल हैं कि एम्बेसी में ये इवेंट हुआ और यहाँ पर पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर आए हैं और पाकिस्तान के लिए दुआ खैर की गई है, सलामती के लिए पाकिस्तान के लिए, और हम बहुत खुश हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को इसी तरह आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद। सफारत खाना पाकिस्तान में मुनक्किद यौम पाकिस्तान की तकरीब सफीर पाकिस्तान डॉक्टर असद मजीद खान के एजाज में अलविदाई तकरीब भी थी। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, वाशिंगटन। यौम पाकिस्तान के तनाजुर में सफारत खाना पाकिस्तान ब्रसेल्स में परचम कुशाई की तकरीब का इनेकाद किया गया। यूरोपीय यूनियन, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में पाकिस्तान के सफ़ीर ज़हीर ए जंजुआ ने कौमी परचम लहराया तो फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। देखते हैं डॉक्टर मोहम्मद कामरान की ये रिपोर्ट। यौम पाकिस्तान की तकरीब में सदर डॉक्टर आरिफ अलवी और वजीर आजम इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। सदर मुमलिकत और वजीर आजम पाकिस्तान ने अपने अपने पैगामात में कौम को मुबारकबाद पेश की और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना और अल्लामा मोहम्मद इकबाल की क़यादत को खैराज तहसीन पेश किया। सफीर पाकिस्तान ज़हीर जंजुआ ने बर्रे सगीर के मुसलमानों की एक आज़ाद वतन के लिए तारीखी जद्दोजहद को खैराज अकीदत पेश किया। उन्होंने शायर फलसफी अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना के नजरियात और विजन की अहमियत पर जोर दिया। उन्होंने पाकिस्तान को एक तरक्की पसंद, एतदाल पसंद और जमहूरी मुल्क होने का तस्वुर दिया। पाकिस्तान की तरक्की में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के किरदार की तारीफ करते हुए सफीर पाकिस्तान ने हुकूमत की तरफ से उनके मसाइल हल करने के लिए उठाए गए इकदामात पर रोशनी डाली। उन्होंने बेल्जियम और लक्समबर्ग में मुकीम पाकिस्तानी कम्युनिटी की हौसला अफजाई करते हुए उन्हें पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करने की तलकीन की। सफीर पाकिस्तान ने इस अज़म का अयादा किया कि कश्मीरी भाइयों की अक़वाम मुत्तहिदा की ज़मानत की मुनसफाना जद्दोजहद में उनकी हर मुमकिन सियासी, सफारती और इखलाकी हिमायत की जाएगी। बेल्जियम के मुख्तलिफ शहरों बाशमूल ब्रसेल्स, गेंट, लेज और लेवन के साथ साथ लक्समबर्ग से कम्युनिटी मेंबरान ने पूरे जोश व खरोश के साथ इस तकरीब में शिरकत की। यौम पाकिस्तान के मौके पर सिफारत खाना पाकिस्तान फिलिपाइन के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान हाउस में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सफीर पाकिस्तान डॉक्टर इम्तियाज अहमद काजी ने परचम कुशाई की। यौम पाकिस्तान के मौके पर सफारत खाना पाकिस्तान फिलिपाइन के ज़ेर इंतज़ाम तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और सफारती अमले ने भरपूर शिरकत की। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ जिसकी सआदत मोहम्मद अदनान कादरी ने हासिल की। तकरीब में सदर पाकिस्तान और इमरान खान के पैगामात पढ़कर सुनाए गए। इस मौके पर सफीर पाकिस्तान डॉक्टर इम्तियाज अहमद काजी का कहना था इस दिन को मनाते हुए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बताए गए असूलों, इत्तेहाद, ईमान और तंजीम पर अमल करने की जरूरत है। उनका मजीद कहना था कि पाकिस्तान तेजी से तरक्की की मनाजिल तय कर रहा है जो खुशाइंद बात है। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस पाकिस्तान का वजूद बनाया था आज वो ताकतवर तरीन ममालिक की सफ में खड़ा है। कसूरी साहब का डायरेक्टर जनरल था और हमने कन्वेंशन सेंटर में इस्लामाबाद में ये कॉन्फ्रेंस मुनाकिद कराई थी। वज़राए खारजा आए थे, तकरीबन 57 में से 30-32 मुल्कों के वज़राए खारजा। आज फिर हमें यह एजाज़ मिला है, 48वां इजलास है। हमें खुशी है पाकिस्तान को लोग हमारे दुश्मन तनहा करने की कोशिश करते हैं लेकिन अल्लाह ताला हमारी इज्जत का रखवाला है। हमारे पाकिस्तानी वतन अजीज में या बाहर जो भी है जिस जज्बे से सरशार है इंशाअल्लाह हमारे वतन पे कोई आंच नहीं आनी है। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टू पाकिस्तान एंड फिलिपाइन फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक नूर अहमद का कहना था कि कैसे हम मिलजुल कर पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। हमें इस हवाले से सोच विचार करनी चाहिए और मिलकर अपना किरदार भी अदा करना चाहिए। पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है। अब हम मुल्क है, इमेज का प्रॉब्लम है,
आपके नॉलेज के इश्यूज हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के इश्यूज हैं। दूसरी जानब सफारतखाना पाकिस्तान और पाक फिल्म फ्रेंडशिप के तावन से रंगारंग तकरीब का इनकाद भी किया गया, जिसमें स्यूबिक में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी, सिटी मेयर और मकामी इंतजामिया ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में चौधरी इफ्तिखार, हाजी गुलाम अब्बास, मलिक शबीर, शहजाद मुस्तफ़ा ने अपने ख्यालात का इजहार किया। खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। रूस में पाकिस्तान के सफीर शफकत अली खान की जानिब से सफारतखाना पाकिस्तान मॉस्को में ऑनलाइन खुली कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने ऑनलाइन शिरकत की और अपने मसाइल से आगाह किया। तफसीलात शाहिद घुम्मन की इस रिपोर्ट में। खुली कचहरी में पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले रूस में जेर तालीम स्टूडेंट्स और पाकिस्तानी कम्युनिटी ने शिरकत की। रूस में मुकीम पाकिस्तानियों को इनके मुसलसल तावन पर शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान के सफीर ने कहा कि पाकिस्तानी सफारतखाना अपने शहरियों का इन मखसूस हालात में भरपूर तावन कर रहा है। उन्होंने कहा कि रूस में मुकीम पाकिस्तानियों ने भी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है। सफीर पाकिस्तान शफकत अली खान ने कहा कि पाकिस्तानी तालिब इल्म हमारा कीमती असासा है, जिनके मसाइल के हल के लिए तमाम तर कोशिशें जारी हैं। ऑनलाइन पेमेंट से मुतल्लिका मसाइल के बारे में बात करते हुए सफीर पाकिस्तान ने शुरका को आगाह किया कि सफारतखाना इस ज़िम्न में तमाम मसाइल से आगाह है, जिसके हल के लिए भी कोशिशें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इस ज़िम्न में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी काम कर रहा है। शफकत अली खान ने कहा कि खुली कचहरी के अलावा भी सफारतखाना पाकिस्तानियों के लिए हर वक्त खुला है और मुतल्लिका सेक्शन रहनुमाई करते रहते हैं। ऑनलाइन खुली कचहरी के शुरका ने सफारतखाना पाकिस्तान रूस के बरवक्त इकदामात की तारीफ की और उम्मीद जाहिर की कि सफारतखाना पाकिस्तान मुस्तकबिल में भी कम्युनिटी खिदमात का ये सिलसिला जारी रखेगा। शाहिद गुम्मन, 92 न्यूज़, रूस। मरूफ आलमदीन अल्लामा सैयद शहनशाह हुसैन नकवी की वियाना एयरपोर्ट पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, बोले इमरान खान की हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। महंगाई इस वक्त पूरी दुनिया का मसला है और स्पीकर असेंबली इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं कर रहा तो उनके पास अदालतें मौजूद हैं। वियाना एयरपोर्ट पर नुमाइंदा 92 न्यूज़ अकरम बाजवा से गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, ये देखते हैं। मौजूदा दौर में मुस्लिम उम्मा के मफाद में, खित्ते के मफाद में और आलम इस्लाम के मफाद में नामों से रिसालत के उन्वान से अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि इस उलझन से इमरान खान को निकलना चाहिए और इमरान खान के लिए मैं दुआ गूँ कि अल्लाह इस उलझन से उन्हें निकाले और उनकी हुकूमत बरकरार रहे। बल्कि मेरी ख्वाहिश तो होगी कि आइंदा 5 साल भी उन्हीं की हुकूमत, क्योंकि महंगाई का मसला सिवाय महंगाई के और क्या मसला है जो एतराज़ किया जा सकता है, वो आलमी मसला है। कौन सा मुल्क है जिसमें महंगाई आम नहीं हुई है। मैं इस मौजूदा हालात में ये कहूँगा कि मुस्लिम उम्मा के, खित्ते के और ये जो चेंज ऑफ ब्लॉक की तरफ पाकिस्तान अपने पड़ोसियों के साथ जाना चाहता है, उसमें इमरान खान का होना जरूरी है। वतन को ठीक करने के लिए इस वक्त इमरान खान की जरूरत है। हमें पाकिस्तान का मफाद देखना चाहिए, अगरचे हम नाराज हैं, हुकूमत वक्त से नाराज हैं, लेकिन पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि और खित्ते का मफाद और आलम इस्लाम का मफाद इसमें है कि एक भुट्टो साहब की तरह एक मर्द आदमी मिलना चाहिए। और कायद आजम के बाद, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के बाद अब हमें इमरान खान ऐसा नजर आता है जो आलमी सतह पर बात करने की सलाहियत रखता है। जो असम्बली और इस स्पीकर का इख्तियारात हैं उसका इस्तेमाल कानून के मुताबिक होना चाहिए। सऊदी अरब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा परवेज शाकिर की जानिब से साबिक चेयरमैन पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट जावेद नजीर बड़ालवी के एजाज में जोहराना दिया गया, जिसमें दीगर अरकान भी शरीक थे। सऊदी दारुलहुकूमत रियाद में दिए गए जोहराने में पीपल्स पार्टी, मिडल ईस्ट और सऊदी अरब के सीनियर अरकान के अलावा पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के नौजवान जियाले भी शरीक थे। इस मौके पर पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन मिडल ईस्ट के साबिक चेयरमैन जावेद नजीर बड़ालवी का कहना था कि पीपल्स पार्टी जमहूरी अक़दार और जमहूरी रिवायात को आगे बढ़ा रही है और जमहूरियत का तसलसल कायम रखने के लिए कोशा है। और बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के जियाले पार्टी उमूर को बेहतर अंदाज में अंजाम दे रहे हैं। सीनियर रहनुमा पीपल्स पार्टी परवेज शाकिर का कहना था कि बिलावल भुट्टो जरदारी पाकिस्तान के नौजवान तबके का लीडर है, जिसको पार्लिमानी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए कोशिशें जारी रखना होंगी और जमहूरी अक़दार को फरोग देना होगा। जोहराने की तकरीब में पीपल्स पार्टी मिडल ईस्ट कल्चरल विंग के सदर काजी इसहाक मेमन, सदर PYO सऊदी अरब एहतशाम जावेद कोहली, जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी यासीन अतमान खिल समेत दीगर भी शरीक थे। सऊदी अरब में एशियन स्प्रिंग म्यूजिक शो सजाया गया, जिसमें सैकड़ों मर्दों खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जबकि पाकिस्तानी और भारतीय गुलकारों ने मिलकर म्यूजिक का ऐसा तड़का लगाया कि बच्चे, बूढ़े और जवान सभी रक्स पर मजबूर हो गए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में KK प्रोडक्शन की जानिब से मुनक्किदा एशियन स्प्रिंग म्यूजिक शो में सैकड़ों भारतीय और पाकिस्तानी शहरियों ने शिरकत की। इस मौका पर दोनों ममालिक के गुलकारों ने म्यूजिक मस्ती से भरपूर ऐसे सुर बिखेरे कि मौसीकी के दिलदादा मन चले नौजवानों के साथ साथ बच्चे और बूढ़े भी वालेहाना रक्स करते रहे।
से भारतीय गुलकारा लक्ष्मी जैन और पाकिस्तानी गुलकार नईम सिंधी के अलावा दीगर ने अपनी आवाज का खूब जादू जगाया। शायकीन ने भरपूर दाद भी दी। स्टेज डांस परफॉर्मेंस ने भी खूब रंग जमाया। इवेंट में इंडियन और पाकिस्तानी म्यूजिक मौसीकी के शायकीन अफराद और परदेश में रहकर देश के रंगों से भी लुत्फानंदोज होते रहे। इवेंट ऑर्गेनाइजर खुरम खान का कहना था कि सऊदी अरब हमारा दूसरा घर है। यहाँ भारत और पाकिस्तान दोनों ममालिक के अफराद मिलकर काम करते हैं, जिनकी तफरीह के लिए इस इवेंट का एहतमाम किया गया, जिसका सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। तकरीब के अख्ताम पर फनकारों को खुसूसी शील्ड से नवाजा गया। उमैर अली, 92 न्यूज, रियाज। खबरें आपने जानी, अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज UK।